Welcome to this special session, right? This is a very, very special session for all of you that this is a company specific preparations. And as you know that we have been training the students for last 6 years, close to 2000 plus students have got the placements. What we primarily focus on is the technical interview preparations, right? There are different kind of preparations that the students generally does, but mostly what we believe is that if you are technically sound, right, then soft skills can be managed a little bit. So the entire 7 days is focused on that. First, I will talk about like what all things that we'll be covering. Then whatever questions you people have, right, you can ask one by one those questions. So the first thing is that we when there is no need to like give you details about the campus and all, right, everything you know. So I'm directly coming on to the preparations part, that from where we have to start our preparation. So this basically the companies where you have been shortlisted. You know that name of those companies. Now these companies are divided into three parts. First one is industry, second is firms, and third one is banks and financial institutions. So broadly, these are the three categories, right? Uh, any company, like you name the company, and I'll tell you like in which category it is falling, right? So let's start with few examples. So anyone can tell me like in which they have got shortlisted. So Axis Bank. Axis Bank, right? So this is falling under bank category. Okay. Someone has written NSDL. So NSDL will come under financial institution, right? NSDL. Okay. PwC SDC, right? This is falling under firms. PwC SDC. PwC Kolkata. Right, that is PwC SDC. Okay. Apex Fund. Apex Fund is falling under banks and financial institution. Okay. Right. Accenture Apex. India. Accenture. Now, Accenture is something slightly different, right? Because Accenture comes for various profiles. So for Accenture, you may get financial reporting also, you may get financial planning also. So normally I put it in the industry category, but sometimes it comes for SAP consultant also. So in that way, it will fall under SAP categories. Right. So Sorry. definitely like mostly they are falling under these three categories, but some will be mix also, mixture. For example, Accenture, it is a mixture. It is coming under industry also, and it is coming under uh, SAP category also, right? Where it is a technical sort of role. Okay, और आगे चलते हैं. So SIDBI, right? SIDBI is falling under banks. Okay. Then Barclays is also falling under bank. Then L&T, Reliance, they are falling under industry. Right. Anand Rathi is again falling under financial institution. But at the same time, some of the profiles are of industry also. Right. Anand Rathi. Okay. ITC, TCS, they are falling under industry. ITC, TCS. Right. TCS sometimes come for SAP role also. So it is again a mixed, right? MSK, if you say MSK is firm. Okay. GAIL, again industry, right? So I believe that broadly you people understood this part, that whichever company you have been shortlisted, it is primarily falling under
either industry or firm or bank, राइट। इन तीनों के अलावा आपको शायद ही कोई अलग कैटेगरी मिलेगी। एक कैटेगरी और आप बोल सकते हो, दैट इज सैप कंसल्टेंट, ये एक अलग कैटेगरी, ठीक है। लेकिन सैप कंसल्टेंट की भी जो प्रोफाइल है वो अगर क्लियरली उन्होंने बताई है तो सैप कंसल्टेंट का अलग रोल है, अदरवाइज वो भी इनमें से ही किसी में फॉल करेगा, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल एक्सेंचर की हमने बात, ठीक है। नाउ व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट दीज थ्री कैटेगरीज, राइट। आप कोई भी बाकी भी कंपनीज लोगे वो इसी किसी कैटेगरी में फॉल करेगी, तो इसका मतलब ये है कि हमको इसके हिसाब से स्टडी करना, ठीक है। तो अब इसके हिसाब से क्या स्टडीज करनी है, एक तरह से वी आर सेटिंग द करिकुलम, राइट। तो सबसे पहला आज का जो दिन है, हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, वी आर सेटिंग द करिकुलम, ओके। मतलब एक तरह से जैसे कि आप अपने एग्जाम्स के लिए सिलेबस पढ़ते हो, उस तरह से ही एक सिलेबस पहले सेट कर दो, ठीक है, कि हमें करना क्या है। उसके बाद हम लोग आगे प्रिपरेशंस पर जाएंगे, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ आई टॉक अबाउट इंडस्ट्री, राइट, इंडस्ट्री के लिए आपको क्या पढ़ाई करनी है, तो इंडस्ट्री के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट है इंड AS पढ़ना, ठीक है। जितनी कंपनीज आपने बताई, L&T, रिलायंस, एक्सेंचर, ठीक है, सभी कंपनीज के लिए इंड AS इंपॉर्टेंट है। तो यू नेम अ कंपनी एंड आई विल टेल यू दैट दिस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल what we will be discussing in the class is इंड AS। इंड AS में कौन कौन से, इंड AS 115, 116, 16, 2, 12 एंड 109, ये हम लोग फर्स्ट फेज में डिस्कस करेंगे, राइट। एंड रिमेनिंग इंड AS आफ्टर दैट, ठीक है। सो हाउ दे आर बेसिकली गोइंग टू आस्क यू रिगार्डिंग इंड AS, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल से आपको और क्लैरिटी आ जाएगी कि लाइक जब हम लोग इंड AS की बात करते हैं तो व्हाट इज दैट दे नॉर्मली कवर्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ वी टेक इंड AS 115, right? So IND AS 115 में they are not going to ask you that tell me what are the 5 steps of IND AS 115. Rather, they will ask you that please tell me how the prepaid and postpaid customers in a telecom company will be accounted for, right? So this is the difference, right? They are not going to ask you the CA final related stuff in a theoretical manner. The case-based question that you have faced, right? Those questions you are going to face in this particular case. So who would like to answer this question, that how will you account for prepaid and postpaid customers as per Ind AS 115? पैरेलली यू हैव टू अंडरस्टैंड, लाइक हम लोग किधर जा रहे हैं, तो आप लोग को वो भी क्लैरिटी आ जाएगी कि हमको पहुंचना कहाँ पर है, और साथ में सिलेबस भी आपको क्लियर होता चला जाएगा। यस एनीवन? So prepaid will be booked as unearned income and postpaid will be booked as unbilled income. मतलब on the basis of that. ऑलराइट, मैं एक और हिंट देता हूँ आपको। प्रीपेड और पोस्टपेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम और एट ए पॉइंट इन टाइम, राइट। इन दोनों में से कौन सी बुकिंग होगी प्रीपेड और पोस्टपेड के लिए? Over a period. राइट, क्वेश्चन क्लियर है? यस एनीवन हु वुड लाइक टू आंसर? Prepaid and postpaid will be booked over a period or at a point, or prepaid over a period, postpaid at a point, and with logics, right? Your answer has to substantiate it with logic. So you have to speak now, right? That is something which is very important in interviews. See, the interview dates are not very far now. It's almost 2 weeks away from you appearing, right? So now we have to start thinking from that angle. So Anyone? हाँ बोलिए। prepaid and postpaid income will be booked over a period of time as the customer receives benefit as we provide services. All right, very good. So basically, both will be recorded over a period of time. Very good answer. Yes, both will be recorded over a period of time, because one of the condition of over a period of time is getting satisfied
that customer is receiving the consuming the benefit as the services are rendered, right? So this is the way we have to prepare for our interviews, right? I'm just giving you an example. I'm not saying कि यही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. I have just given you example ताकि अब आप लोगों को क्लियर हो कि application based knowledge is required in interviews, right? So syllabus के साथ में what do you have to prepare an application based preparation. Application किसका है? इन सभी स्टैंडर्ड्स का है. ठीक है. So we will be taking almost 75 to 80 questions of Indies. Right? These 75 to 80 questions will cover maximum portion of whatever questions are being frequently asked. जो maximum frequently पूछे जाते क्वेश्चन है उसको हम लोग यहाँ पर कवर कर लेंगे. ठीक है. तो सभी स्टैंडर्ड्स के लिए ऐसा है, लेकिन डेफिनेटली 115 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा ज्यादा डीप में डिस्कशन करेंगे. ठीक है. तो दैट इज इंडेस. तो इंडस्ट्री के लिए इंडेस इज सुपर इंपॉर्टेंट. ओके. अभी लाइक आई विल कम टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑल्सो. वहां भी आप लोग देखोगे कि वहां के लिए भी इंपॉर्टेंट. जैसे किसी ने बोला था कि दे हैव गॉट शॉर्टलिस्ट इन बार्कलेज, सो बार्कलेज के लिए भी इंपॉर्टेंट. ठीक है. सो दिस पॉइंट इज क्लियर. दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट. यहाँ पर डबल ट्रिपल स्टार बना लो आप. ये मत सोचना कि लाइक हमको बैंक की शॉर्टलिस्टिंग आई तो इंडेक्स पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है. वो डिपेंड करता है कौन सी बैंक की शॉर्टलिस्टिंग आई है. ठीक है. एक्सिस बैंक की आई है तो वहां पर भी हमको देखना पड़ेगा. अगर कॉर्पोरेट ऑफिस में आप जाओगे तो ऑल दो बैंक्स के ऊपर इंडेक्स एप्लीकेबल नहीं है, बट वो एएस के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, राइट? सो दिस इज अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट. अपार्ट फ्रॉम दैट इंडस्ट्री के अंदर आपको और क्या पढ़ना है? इंडस्ट्री में आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ना है. ठीक है. फाइनेंशियल मैनेजमेंट. ठीक है. फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या पढ़ना है? तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में यू हैव टू रीड रेशियो एनालिसिस, यू हैव टू रीड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल बजटिंग एंड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट. ये चार टॉपिक आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, राइट? बिकॉज बहुत सारी कंपनीज होती हैं जहां पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स होते हैं. नॉर्मली सीएफओ राउंड में जनरली फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्वेश्चंस कवर होते हैं. ठीक है. सो वी विल बी कवरिंग रेशियो एनालिसिस, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल बजटिंग एंड वर्किंग कैपिटल. ठीक है. नाउ हाउ दे आर गोइंग टू आस्क दीज क्वेश्चंस, राइट? इस क्वेश्चन को कैसे पूछा जाता है? इस क्वेश्चन को ऐसा पूछा जाता है, फॉर एग्जाम्पल डेटर टर्नओवर रेशियो. ठीक है ना? डेटर टर्नओवर रेशियो ऑफ 4 इज गुड और 3 इज गुड. ठीक है. डेटर टर्नओवर रेशियो ऑफ 4 इज गुड और 3 इज गुड. जस्ट थिंक अबाउट इट. More the data turnover ratio, more the merrier the better. And जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा अच्छा होगा, because अब उतने जल्दी डेटा को रियलाइज कर पा रहे हैं. राइट. सो जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा बेटर होगा, राइट? दैट्स द आंसर. सो इज इट राइट? जितना ज्यादा होगा उससे क्या बेटर होगा, उससे क्या फायदा होगा? Since we are able to recover the data in a lesser period of time. Very good answer, right? Higher the better. Okay, so Garima has given that answer. Okay, good answer. So basically 4 का क्या मतलब है? 4 का मतलब ये है कि we are able to recover in 90 days. 365 by 4 around 90 days. And this is 365 by 3 around 120 days. ठीक है. So कहने की बात ये है कि like application based ratio analysis has to be covered in this case. ठीक है. So these are the topics that we will be covering in financial management. So close to around, I believe, 70 to 80 questions will be covering related to these topics. These are all again application based, right? Is the IRR better or NPV better? If you have to take a decision, which one is better, NPV or IRR? Yes, anyone? दोनों में से कौन सा बेटर है अगर आप डिसीजन लेते हो?
सो आपको उसमें दोनों का एप्लीकेशन भी पता होना चाहिए, ठीक है, एनपीवी बेटर है, आईआरआर बेटर। सो इस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग को फाइनेंशियल मैनेजमेंट के केस में देखने को मिलेंगे, राइट? सो दिस इज द सेकंड थिंग दैट यू हैव टू कवर। Apart from that, if we come to industry category, you have to little bit read about direct tax or indirect tax, ठीक है? तो अब आप बोलोगे कि ये क्यों पढ़ना है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स? ये इसलिए पढ़ना है क्योंकि हमको इंडस्ट्री में ये नहीं पता है कि किस प्रोफाइल के लिए आए। जैसे अभी आपने बोला रिलायंस, आरआईएल, ओके। नाउ आरआईएल ने बहुत अलग अलग तरह की पोस्टिंग दी है। आरआईएल ने कभी हेड ऑफिस में पोस्टिंग दी है, कभी सब्सिडरी में दी है, कभी टेलीकॉम में दिया है, कभी जामनगर भेज दिया है, राइट, देयर रिफाइनरी। तो कहने की बात ये है कि पोस्टिंग नहीं पता है हमको कहाँ पर मिलने वाली है। तो अब रिलायंस कैन गिव यू पोस्टिंग इन कंसोलिडेशन टीम ऑल्सो। तो यहाँ पर क्वेश्चन आ गए इंडेस के। अगर उन्होंने दे दिया आपको डायरेक्ट टैक्स के अंदर, तो फिर डायरेक्ट टैक्स के क्वेश्चन, और अगर आईडीटी में आ गए तो आईडीटी, राइट? तो वी हैव द पॉसिबिलिटी, और मिक्स प्रोफाइल भी आ सकती है यहाँ पे। अगर उन्होंने कोई ऐसी लोकेशन दे दी आपको जहाँ पर अकाउंटिंग और टैक्स दोनों होते हैं, तो फिर दोनों आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे। तो इसलिए आपको थोड़ा डीटी पढ़ के जाना है। और डीटी में क्या क्या पढ़ना है, लाइक टेल यू ऑन दैट पार्ट ऑल्सो, स्पेशली रूटीन डायरेक्ट टैक्सेशन। रूटीन डायरेक्ट टैक्सेशन का मतलब ये है कि टीडीएस, कॉर्पोरेट टैक्स, पीजीबीपी, डिडक्शंस, डेप्रिसिएशन, एग्जम्पशंस, राइट? सो ये, और कुछ रिटर्न फाइलिंग्स की डेट्स, टैक्स ऑडिट, ठीक है? तो ये बेसिक आपको डीटी का पढ़ना पड़ेगा, ओके? दैट इज समथिंग विच इज सर्टेनली इम्पोर्टेंट, ठीक है? तो आई डोंट थिंक कि इतना टिपिकल है, क्योंकि ये बेसिक्स है, राइट? इसमें मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इंटरनेशनल टैक्सेशन पढ़ना है, डीटी डबल ए पढ़ना है। ये सब चीजें जो है, ये अगेन फिर डिपेंड करता है, अगर कोई ऐसी कंपनी आ जाती है जहां पर ये सब रिक्वायरमेंट है, तब जाके हमको वो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? अदरवाइज बेसिक से काम चल जाएगा। सो दैट इज फॉर डीटी। एंड आईडीटी की बात करें तो आईडीटी में ज्यादा नहीं, अगेन आईटीसी, प्लेस ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, ई वे बिल, ई इनवॉइसिंग, राइट? अगेन बेसिक्स। तो ये सब हमको कवर करना है। अब आप लोग बोलोगे कि सर हमने पढ़ा हुआ सब है, लेकिन रिकॉल करने की जरूरत है। तो बेसिकली वी विल बी रिकॉलिंग दैट इन दी क्लास, ठीक है? तो ये हमको रिकॉल ही करना है, ठीक है? अपार्ट फ्रॉम दिस वन, ये तो टेक्निकल बातें हो गई। अब आपसे ये भी पूछा जाएगा, जैसे कि लाइक आपने बोला रिलायंस, ठीक है? तो व्हाट यू नो अबाउट रिलायंस? सो अबाउट रिलायंस, ठीक है? तो अब आप बोलोगे क्या क्या पढ़ना है रिलायंस के बारे में, कैसे पढ़ना है, क्या क्या चीजें पढ़नी। तो हम लोग वो भी कवर करेंगे कि व्हाट यू नो अबाउट रिलायंस, वेरी कॉमन क्वेश्चन, व्हाट यू नो अबाउट रिलायंस इंडस्ट्रीज, व्हाई यू वांट टू ज्वाइन रिलायंस इंडस्ट्रीज, राइट? सो दिस इज अगेन वन थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो उसी के बेसिस पे आपको और क्लैरिटी आएगी। अच्छा, इंडस्ट्री में जैसे मैंने ये बातें बोली आपको, इसके साथ में एक प्रोफाइल और आ सकती है इंडस्ट्री में, दैट इज दे में पुट यू इन एफपी एंड ऑल्सो। सो एफपी एंड में भी अगर वो पुट अप करते हैं आपको, तो जो मैंने फाइनेंस रिलेटेड आपको पॉइंट्स बोले हैं, उससे वो भी कवर हो जाएगा, ठीक है? तो ये पॉइंट सबको क्लियर है? जिनको इंडस्ट्री की शॉर्ट लिस्टिंग आई है, किसी का भी क्वेश्चन हो तो बताइए प्लीज। जिन जिनको भी इंडस्ट्री की शॉर्ट लिस्टिंग आई है, यस, एनी क्वेश्चन इफ यू पीपल हैव, प्लीज आस्क, ठीक है ना? आज का जो डिस्कशन है वो जनरल डिस्कशन है, तो आप कोई भी क्वेश्चन हो तो यस, डेफिनेटली यू कैन आस्क फ्रीली, ओके? Sir, what should I prepare for Vedanta interview and हाँ, GD? राइट। सो देखो, वेदांता है फॉर एग्जांपल, ठीक है? वेदांता इज अगेन कमिंग फॉर, मोस्टली इट इज कमिंग फॉर प्लांट लोकेशन, ठीक है? अभी प्लांट में क्या होता है, प्लांट में एक तो अकाउंटिंग होती है, दूसरा थोड़ा बहुत कॉस्टिंग होती है, थर्ड इज आईडीटी, ठीक है? और डायरेक्ट टैक्स में टीडीएस। अकाउंटिंग के लिए इंडेस, कॉस्टिंग थोड़ा बहुत मैं बता दूंगा क्या पढ़ना है आपको, आईडीटी जो मैंने पॉइंट बताया, प्लेस एंड टाइम ऑफ सप्लाई, टीडीएस के सेक्शन, ठीक है?
अगर ये प्लांट लोकेशन के लिए, तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी तो ये ज्यादा करके प्रोबेबिलिटी इसी की है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आपको हेड ऑफिस या कंसोलिडेशन टाइप की प्रोफाइल मिलती है, तो फिर वहां पर आपको अकाउंटेंसी में ही थोड़े से और कंसोलिडेशन रिलेटेड स्टैंडर्ड्स और पढ़ने पड़ते। ठीक है। तो वेदांता जैसी जो प्रोफाइल है, राइट, ये सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोफाइल्स हैं, क्योंकि इसमें हमको पता नहीं है कि हमको कौन सा डिपार्टमेंट मिलेगा। तो इसलिए मेरा मानना ये है कि जिन जिन को भी इंडस्ट्री की शॉर्टलिस्टिंग आई है, ये सबसे ज्यादा टिपिकल मामला है। समझ रहे हो आप? टिपिकल क्यों है? क्योंकि पता नहीं है कौन सा डिपार्टमेंट, उन्होंने सिंपल एक वर्ड लिखा होगा वहां पे, मैनेजमेंट ट्रेनिंग। तो ये ट्रिक के कारण हम लोग को सब काफी कुछ पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, यू हैव टू बी रेडी फॉर एवरीथिंग। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स जो वेदांता में प्लेस्ड हैं, हर एक स्टूडेंट का अलग एक्सपीरियंस रहा है। किसी से फाइनेंशियल मैनेजमेंट ज्यादा पूछ लिया, किसी से आईडीटी ज्यादा पूछ लिया, किसी से फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ज्यादा पूछ ली। ठीक है ना? तो इसलिए आपको यहाँ पे थॉरो प्रिपरेशन करके जानी पड़ेगी, लगभग लगभग जितने भी टॉपिक्स के। बट मैं आपको सिलेक्टिव टॉपिक्स बता दूं, तो इस क्लास का जो मेन पर्पज है वो है सिलेक्टिव प्रिपरेशन। ठीक है ना? सब कुछ तो पढ़ नहीं सकते, इम्पॉसिबल है वो। और दैट टू इन लाइक 4-5 डेज। 4-5 दिन में आपको अगर अपने आपको पूरी तरह प्रिपेयर करना है, तो फिर पॉसिबिलिटी बचती ही नहीं है कि हम सब कुछ पढ़ें। तो यू हैव टू बी सुपर सिलेक्टिव। ठीक है। आई विल टेल यू लाइक व्हाट यू हैव टू प्रिपेयर इन दिस थिंग। राइट। सो ये इंडस्ट्री वाली वाली बात क्लियर हो गई आप लोगों को। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट कैटेगरी के ऊपर, दैट इज फॉर्म्स। ठीक है। अभी फॉर्म नॉर्मली किसके लिए आती है? फॉर्म नॉर्मली आती है स्टैट्यूटरी ऑडिट प्रोफाइल के लिए। ठीक है। कोई भी एक फॉर्म का एग्जांपल दो आप लोग। एमएसके का आपने बोला था। ठीक है, एमएसके का जॉब डिस्क्रिप्शन है क्या? अगर जॉब डिस्क्रिप्शन है तो बता दो एक बार। लास्ट टाइम तो वो मिक्स रोल के लिए आई थी। ठीक है। सो हो सकता है वो अलग अलग रोल के लिए, अगर स्टैट्यूटरी ऑडिट के लिए जिसकी पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है। ठीक है। अगेन इंडेस, सुपर इंपॉर्टेंट। तो इंडेस यहाँ भी पढ़ना है आपको। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं ऑडिट की, तो ऑडिट में अगेन प्रैक्टिकल अप्रोच, ये बहुत मिसिंग देखी है मैंने। बहुत सारे स्टूडेंट से रोज मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। आज मॉर्निंग में हम लोगों का ऑडिट का डिस्कशन था, बहुत सारे स्टूडेंट से जेनरिक क्वेश्चन पूछे, लेकिन आंसर्स, प्रैक्टिकल आंसर्स नहीं आते हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। थ्योरेटिकल आंसर ज्यादा करके आते हैं। ठीक है। what what opinion will you give if the company has not made provision for doubtful debt? राइट। कंपनी ने अगर प्रोविजन नहीं बनाया फॉर डाउटफुल डेट्स का, तो क्या ओपिनियन दोगे आप? Will you give a qualified opinion? Will you give an adverse opinion? Will you give disclaimer of opinion? Or will you give a clean opinion? What kind of opinion will you give? Anyone? Yes, बोलिए। If company has not made provision for doubtful debts, depend on materiality. Is तो sir, हम्म if company has not followed any basic rules, so we have to see what kind of effect it has on financial statement. According to that, we would be reporting. If it's like material and not pervasive, then we will give qualified opinion. Material and pervasive, then we will give adverse opinion. And if we can't decide that what kind of effect it is having on financial statement, then we will give disclaimer of opinion. the first two answers are right, right? But if you, it's not like how you decide. If you can't decide, it's basically you are not able to get the appropriate information from the management. Then you will give a disclaimer, right? So, but first two answers are right. Okay, normally people give a very very स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दैट प्रोविजन नहीं बनाया है तो क्वालिफाई कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है आपको। अगर आपको प्रोविजन नहीं बनाया है, तो आपको उनको बताना है कि लाइक जो रूल्स हैं, बेसिकली रूल ये बोलता है कि मटेरियल है या नहीं। सबसे पहला जो पॉइंट है, जो आशीष ने बोला कि लाइक डिपेंड ऑन मटेरियलिटी।
अगर मटेरियल है और फिर उसके बाद देखना है कि इज इट परवेसिव और नॉट, उसके हिसाब से फिर हमको ओपिनियन देना है। तो कहने की बात ये है कि प्रैक्टिकल आंसर्स, राइट, प्रैक्टिकल, जैसे आज और हमने डिस्कशन किया था दैट practical examples of internal financial controls. What are the practical examples of internal financial controls? So internal financial controls जब मैं पूछता हूँ तो 80% स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू रिकलेक्ट कि वो पढ़ा कहाँ पर था, और पढ़ा अगर था तो फिर वो एक्चुअली आता कहाँ पे। तो वो बेसिकली ऑडिट रिपोर्ट में जो एनेक्शर ए है दैट इज कारो रिपोर्टिंग, एंड एनेक्शर बी इज इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स। तो कंपनी इज नॉट आस्किंग यू सिंपल क्वेश्चंस कि लाइक डेफिनेशन बता दो। वो ये पूछेंगे आपसे कि आप इस मैटर को की ऑडिट मैटर में डाल रहे हो तो क्यों डाल रहे हो, और इसको आप एड्रेस कर रहे हो तो कैसे एड्रेस कर रहे हो, या एम्फेसिस ऑफ मैटर में क्यों लिया है उसको, अदर मैटर में क्यों नहीं लिया है। they are basically, it's practical, right? So in short, if I have to tell you about audit, so practical approach is required. If you are talking about revenue audit, जैसे बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है कि आप फेक रेवेन्यू कैसे आइडेंटिफाई करो, तो अगेन प्रैक्टिकल बात होगी। कुछ एम्प्लॉयज जो है वो आपको लग रहा है कि दे आर नॉट एक्चुअली देयर इन द सिस्टम बट स्टिल सैलरी जा रही है उनकी, तो इस चीज को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये भी कौन सा हो गया, प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो गया। तो जितने भी क्वेश्चंस हम लोग बात कर रहे हैं ये सब केस बेस्ड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आप लोगों को मैं अगेन ये बात बोलूंगा कि जो मटेरियल मैं आप लोगों को दूंगा उसको ही रेफर करना। आप वापस से अगर फाइनल की बुक्स देखने चले गए तो आप थ्योरेटिकली बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, बिकॉज आंसर्स आर कंप्लीटली डिफरेंट। इंटरव्यूअर इज एक्सपेक्टिंग अ कंप्लीटली प्रैक्टिकल आंसर और आप उनको थ्योरेटिकल आंसर दे रहे हो, तो ये मिसमैच हो जाएगा। और हमको कंपटीशन में थोड़ा आगे ही रहना है, राइट, कंपटीशन में आगे रहना है तो प्रैक्टिकल अप्रोच लेके ही चलना पड़ेगा। हैव यू अप्लाइड इंडेस 16 इन प्रैक्टिकल लाइफ, ये पूछा अगर क्वेश्चन आपसे, हैव यू अप्लाइड इंडेस 16 इन प्रैक्टिकल लाइफ, क्या बोलोगे आप बोलोगे कि ऑब्वियसली नहीं किया होगा, तो आप बोलोगे कि नहीं अप्लाई किया, लेकिन आंसर आपका यहाँ खत्म नहीं होगा, राइट। इंडेक्स 16 अगर आपने नहीं अप्लाई किया कोई बात नहीं, आप ये बोलोगे कि मैंने इंडेक्स 16 अप्लाई नहीं करा है, लेकिन आई नो फ्यू ऑफ द एप्लीकेशन बेस्ड सिनेरियोज ऑफ इंडेक्स 16। एप्लीकेशन बेस्ड सिनेरियो उनको बताओगे आप, दे विल अप्रिशिएट दैट फैक्ट। आप कंपोनेंट अकाउंटिंग का एग्जांपल दे दो, आप उनको ये बता दो कि लाइक जो सम ऑफ द असेट्स आर वैल्यूड एट कॉस्ट और रिवोल्यूशन मॉडल, उसके बारे में कुछ प्रैक्टिकल बातें। तो हम लोग क्लास में जब ये सब प्रैक्टिकल डिस्कशन करें तो उसको नोट करते जाना है आप। सो पूरा जो थीम है, थीम इज बेसिकली लेस ऑफ थियरी एंड मोर ऑफ प्रैक्टिकल, ठीक है। जितने मैंने अभी क्वेश्चंस पूछे आप एक भी क्वेश्चन देखोगे आपको थियरी नहीं लगेगी, इट्स ऑल एप्लीकेशन, राइट। डेट इक्विटी रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो कौन सा बेटर है, 2:1 बेटर है या 1:2 बेटर है, राइट। अगेन स्टूडेंट्स हैव वेरियस पर्सपेक्टिव अबाउट दैट कि नहीं 2:1 बेटर है, 1:2 बेटर है, ये क्वेश्चन वो आपसे प्रैक्टिकली पूछेंगे। अगेन आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रीजनिंग होनी चाहिए कि हाँ ये इसका आंसर है, ठीक है। तो दैट इज व्हाट इज अबाउट ऑडिट। ऑडिट में हम लोगों को अराउंड 30 क्वेश्चंस लेने हैं, ठीक है ना। आई पर्सनली बिलीव कि 80% ऑफ द क्वेश्चन यू विल गेट फ्रॉम दीज 30 क्वेश्चंस, ठीक है। सो दैट इज अनदर वन। आई एम टॉकिंग अबाउट स्टैट्यूटरी ऑडिट। अगर इंटरनल ऑडिट है तो इंटरनल ऑडिट एक अलग मैटर हो जाएगा, इंटरनल ऑडिट की जो तैयारी है वो स्लाइटली डिफरेंट रहेगी, ठीक है। सो फॉर्म्स के अंदर अगर स्टैट्यूटरी ऑडिट आता है तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। लेकिन फॉर्म्स में अगर आपके पास अ, दूसरी प्रोफाइल्स आई है, दूसरी प्रोफाइल्स मतलब क्या क्या आ सकती है, डीटी आईडीटी, ठीक है ना। तो इसके लिए अब आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन करनी है क्योंकि फॉर्म्स स्पेशलाइजेशन पसंद करती है। तो यहाँ पे अब आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स में बहुत कुछ पढ़ के जाना पड़ेगा, केवल ऊपर ऊपर पढ़ के फायदा नहीं होगा। जो मैंने आपको इंडस्ट्री के लिए बताया था उतने से काम नहीं चलेगा, नाउ यू हैव टू रीड इन डेप्थ इफ इट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। किसी को आया है फॉर्म से डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स के लिए,
ऑलराइट, अच्छी बात है अगर नहीं आया तो, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत है इसके अंदर। लेकिन फिर भी अगर आपको आता है तो करना चाहिए ये चीज। ठीक है, आपको आया है, ओके। तो इट हैज कम तो डीटी के अंदर अगेन बहुत सारे रोल हैं, राइट। डीटी के अंदर कॉर्पोरेट टैक्सेशन है, एनआरआई टैक्सेशन है, देन ट्रांसफर प्राइसिंग है, एमएनडे टैक्सेशन है, सब अलग अलग है, राइट। इन सबके लिए अलग अलग प्रिपरेशन है। इनडायरेक्ट टैक्स में करीब करीब एक जैसी प्रिपरेशन से काम चल जाएगा आपको, बट डीटी इज वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, तो वहां के लिए आपको सुपर एक्स्ट्रॉर्डनरी प्रिपरेशंस करनी रहेगी, तो हम लोग आई गाइड यू ऑन दैट। फर्म्स में और तो नॉर्मली तीन ही तरह की प्रोफाइल मिलेगी: स्टेट ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, डीटी और आईडी। ठीक है ना, सो वी हैव टू प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू दैट, राइट। अब जब हम बात कर रहे हो स्टेट ऑडिट की, तो जितनी भी ग्लोबल फर्म्स हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट हैव गॉट शॉर्टलिस्टिंग फ्रॉम पीडब्ल्यूसी, एसडीसी, ईवाई, जीडीएस, राइट। ये जो फर्म्स है ये नॉर्मली आती है स्टेट ऑडिट के लिए। तो इनके जो क्वेश्चंस हैं, इनके क्वेश्चंस एग्जैक्टली वही क्वेश्चंस हैं। कौन से? इंडेस एंड ऑडिट। तो ग्लोबल फर्म्स के लिए अब आपको अलग से कुछ भी नहीं पढ़ना है। जो मैंने आपको उसके लिए बताया, सेम प्रिपरेशन यू हैव टू डू फॉर ग्लोबल फर्म्स ऑल्सो, पीडब्ल्यूसी, एसडीसी और ईवाई, जीडीएस, राइट। इनके लिए भी ये प्रिपरेशन करो। ठीक है, तो फर्म से रिलेटेड किसी को कुछ डाउट हो तो बताइए। क्लियर है सभी को? कोई भी क्वेश्चन हो अगर आपका, इफ यू गॉट शॉर्ट लिस्टिंग फ्रॉम फॉर्म्स, एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू डिस्कस? ऑलराइट, ओके, सुपर। नाउ कमिंग टू बैंक्स। अब बैंक्स में देखो दो तीन वैरायटी है। पहले बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें नो डाउट अलग अलग चीजें हैं। जैसे कि लाइक एक है इंडियन बैंक, दैट इज एक्सिस, राइट। तो अभी एक्सिस बैंक है, ठीक है, तो ये किस रोल के लिए आई है? दिया हुआ है उन्होंने। हमें इसमें उन्होंने रोल स्पेसिफाई नहीं किया, बहुत सारी पोजीशंस दी है ऐसा। हाँ, वो तो वो एक्चुअली कॉपी पे नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, उसका मेरे को स्क्रीनशॉट भेज देना। सो नॉर्मली मैं बता देता हूँ क्या क्या होता है इसमें। इसमें दो बातें होती है, एक होता है हेड ऑफिस, एक होता है ब्रांच। ठीक है, हमने दोनों ही जगह अपने स्टूडेंट्स को देखा हुआ है इंटरव्यू देते हुए। हेड ऑफिस जब होता है, तो हेड ऑफिस के लिए आपको वही प्रिपरेशन करनी है जो आपने इंडस्ट्री के लिए करी। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंडस्ट्री प्रिपरेशन प्लस बैंकिंग प्रिपरेशन। ठीक है, और ब्रांच में जब जा रहे हो आप, तो यहाँ पर आपको प्रिपरेशन करनी है क्रेडिट मैनेजर। ठीक है, तो इस बात को मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ। जो इंडस्ट्री की प्रिपरेशन है वो मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, तो उसको छोड़ देते हैं। लेकिन अगर आप एक्सिस में जा रहे हो, मल्टीपल रोल्स के लिए एचओबी और ब्रांच भी है, आपको पता नहीं है तो आपको दोनों प्रिपेयर करना है। आपको इंडस्ट्री के हिसाब से भी प्रिपेयर करना है और क्रेडिट मैनेजर के हिसाब से भी प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो जितनी भी बैंक्स या एनबीएफसी है इंडियन, उसमें बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि आपको क्रेडिट मैनेजर या रिलेशनशिप मैनेजर का रोल। ठीक है, अब आपको क्रेडिट या रिलेशनशिप मैनेजर का रोल मिल रहा है, तो ये सबसे इजी रोल है प्रिपरेशन के हिसाब से। यहाँ पे आपको बहुत कम मेहनत करनी है। ठीक है, क्यों कम मेहनत करनी है? क्योंकि ना तो इंडेस पढ़ना है, ना डायरेक्ट टैक्स पढ़ना है, ना इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ना है, ना ऑडिट पढ़ना है। सबसे इजी काम है यहाँ पे। तो क्या पढ़ना है यहाँ पे आपको सिंपल काम ये करना है कि आपको ये समझना है कि जो लोन्स होते हैं, राइट, लोन देने के लिए हमको क्या क्राइटेरियाज ध्यान रख, बस। तो दो तरह के लोन्स होते हैं, एक होता है रिटेल, एक होता है कॉर्पोरेट, रिटेल एंड कॉर्पोरेट। ठीक है, बस इसको आपको समझना है कि जब हम लोन देते हैं किसी क्लाइंट को, तो क्या क्या चीजों का ध्यान रखते हैं। सो ये थोड़ी बहुत ही स्पेसिफिक प्रिपरेशन है। देयर आर क्लोज टू 10-15 क्वेश्चंस ऑन दैट। इफ यू प्रिपेयर दिस वन, यू आर थ्रू फॉर क्रेडिट मैनेजर एंड रिलेशनशिप मैनेजर। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम सो दिस वन, बैंक्स के ऊपर एस एप्लीकेबल होते हैं क्या?
नहीं, बैंक्स का जो अभी बैंक्स के ऊपर का फॉर्मेट अलग है। नहीं, बेसिकली अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कौन से इंडेस तो नहीं लगते, बिकॉज तो ए से ही लगते होंगे। मतलब वो तो बेसिकली शेड्यूल 3 के हिसाब से ही रहता है। मतलब शेड्यूल 3 डिवीजन 1 लगता है उस पे, जो नॉर्मली इंडेक्स के ऊपर रहता है। लेकिन आरबीआई के हिसाब से कुछ स्पेसिफिक रिपोर्टिंग भी रहती है। ठीक है ना। तो आपको जब आप हेड ऑफिस में जा रहे हो तो ये सब प्रिपेयर करना, मतलब मैं अभी ब्रांच की बात कर रहा हूँ, तो ब्रांच के लिए आपको रिटेल लोन और कॉर्पोरेट लोन, राइट, केवल इतना प्रिपेयर करना है। और इसके कुछ स्पेसिफिक 10-15 क्वेश्चंस हैं, एंड सम बैंकिंग टर्मिनोलॉजीज, बैंक से रिलेटेड जो टर्म्स हैं, बस उतनी प्रिपेयर करना है। तो मेरा मानना ये है कि इंडियन बैंक्स एक्सेस अगर ब्रांच के लिए आ रही है तो सबसे कम तैयारी में आपका सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे आपके टॉपिक्स बच जाएंगे उसमें प्रिपरेशन। ठीक। लेकिन अब अगर हम थोड़ी सी अलग टाइप की बैंक की बात करें, या और किसी, एक एक दो एग्जांपल वो ले लेंगे, आप लोग मुझे बता देना कौन सी बैंक है, कौन सी एग्जांपल है। जैसे कि एक बोला गया था बार्कलेज, राइट। नाउ बार्कलेज किस रोल के लिए आएगी, पहले तो आपको देखना है। ठीक है, कुछ लिखा है उन्होंने बार्कलेज ने, कौन सी बैंक कौन से रोल के लिए आई। तो कई जगह रोल नहीं लिखते, ये नाम लिख दे, डेजिग्नेशन लिख देते हैं, जैसे कि एनालिस्ट लिख दिया। अब एनालिस्ट लिख दिया मतलब आप समझो कि फिर कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया, क्योंकि एनालिस्ट डेजिग्नेशन है, एनालिस्ट रोल नहीं है, हमको चाहिए जॉब डिस्क्रिप्शन। अगर ये लोग लिख देते हैं बार्कलेज के आगे कि वी आर लुकिंग फॉर पर्सन फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट फॉरेक्स, तो बहुत इजी हो जाता है आपके लिए कि एनालिस्ट इन फॉरेक्स, मतलब फॉरेक्स की प्रिपरेशन करके चले जाते हैं। बट व्हेन दे डू नॉट टेल यू दैट, देन बिकम्स अगेन अ क्वेश्चन मार्क। ठीक है। तो इसलिए मैक्सिमम केसेस में आपको ये करना है कि जब आप जब मैं आप लोगों के साथ 1-to-1 डिस्कशन करूंगा, तो पहले आप बता देना कि लाइक उस पर्टिकुलर कंपनी का जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है। ठीक है। और अगर उन्होंने कुछ भी नहीं दिया होगा जॉब डिस्क्रिप्शन, तो फिर हमको कुछ अजम्पशन लेके चलना पड़ेगा कि ये पॉसिबिलिटीज। ठीक है। तो मेरा पर्सनल मानना जो है वो पहले मैं आपको बता देता हूँ। इस टाइप की जो कंपनीज आती हैं, ये आती है प्रोडक्ट मैनेजर के लिए। प्रोडक्ट मैनेजर, नाउ व्हाट इज प्रोडक्ट मैनेजर? प्रोडक्ट मैनेजर या प्रोडक्ट कंट्रोलर प्रोफाइल के लिए, तो इट इज ब्रॉडली, कंट्रोलर वर्ड जहां भी आएगा उसका क्या मतलब हो जाता है? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ठीक है। तो घूम फिर के बात कहाँ आ गई? बार्कलेस के लिए भी प्रिपरेशन क्या करनी है आपको? अगेन आपको अकाउंटिंग की प्रिपरेशन करनी है। लेकिन यहाँ पर ऑब्वियसली बार्कलेस है तो फिर क्या एप्लीकेबल होगा यहाँ पे? एएस तो एप्लीकेबल होंगे नहीं। लेकिन बार्कलेज इंटरनेशनल बैंक है, मतलब आईएफआरएस एप्लीकेबल होगा उन पे। आईएफआरएस एप्लीकेबल है मतलब हमको इंडेस पढ़ के जाना है। ठीक है। अब इंडेस पढ़ना है, बार्कलेज है, तो कौन सा पढ़ना पड़ेगा सबसे इंपॉर्टेंट? 109। तो इस तरह से हमको ये सारी चीजों को इंटरप्रेट करके इस हिसाब से सिलेक्टिव प्रिपरेशंस करनी। क्लियर है सभी को? तो ये एक बैंक होगी बार्कलेज, तो इसमें आपको प्रोडक्ट मैनेजर की स्पेसिफिक प्रोफाइल की प्रिपरेशन करनी है। ओके। और बोले, एक्सिम बैंक आपने बोला, ठीक है, एक्सिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। ठीक है। अब यहाँ पर आपको अगेन रेशियो एनालिसिस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है, राइट। व्हाट दे आर लुकिंग फॉर इज अ पर्सन हु हैज गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ बैंकिंग प्रोडक्ट्स। बैंकिंग के प्रोडक्ट्स पता होने चाहिए, और खास तौर पे एक्सिम के, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के प्रोडक्ट्स पता होने चाहिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का प्रोसीजर पता होना चाहिए। तो ये बहुत स्पेसिफिक रोल हो गया, मतलब इसकी जो प्रिपरेशन है वो और किसी के लिए नहीं कर, जो एग्जाम की तैयारी करनी है। तो ये पूरी पूरी तैयारी अलग हो गई है, राइट। इसके अलावा फिर कुछ शायद एनबीएफसीज भी आई थी जो आपने बताई थी, राइट, आनंद राठी एंड ऑल। तो अब आनंद राठी की अगर बात करते हैं, आनंद राठी भी बहुत सारे लोगों को शॉर्टलिस्ट करते हैं। तो ये भी बहुत मल्टीपल रोल के लिए आता है, इक्विटी रिसर्च भी है इसके अंदर, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट भी है। ठीक है। फिर अकाउंटिंग भी है इसके अंदर।
दे कम फॉर लॉट ऑफ प्रोफाइल. सो डिपेंडिंग ऑन अगेन कौन सी प्रोफाइल है. इफ इट इज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट देन डेफिनेटली फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ना है यहाँ पे. इफ इट इज टैक्सेशन तो फिर ओनली टैक्सेशन. ठीक है. लेकिन आप बोलोगे कि ये तो पूरा मिक्स रोल दे दिया उन्होंने और पता नहीं है कि वो किस रोल के लिए है. अगर पता नहीं है तो फिर सब पढ़ना पड़ेगा. दैट इज द प्रॉब्लम. ठीक है. सो इसलिए हमको सबसे जरूरी ये है कि पता लगाना है कि पॉसिबिलिटी का है. आप नहीं पता लगा पा रहे हो तो मुझे बताओ. मैं पास्ट स्टूडेंट से बात करके बता दूंगा आपको कि, और 80% कंपनीज का तो मैं ऐसे ही बता दूंगा आपको. क्योंकि हम लोग हर साल ही देखते हैं, हर अटेम्प्ट में ही देखते हैं कि कौन सी कंपनी किस रोल के लिए आ रही है. समझ रहे हो आप. तो दैट इज व्हाट इज द फर्स्ट थिंग. वी हैव टू decode द प्रोफाइल्स. आफ्टर डिकोडिंग यू नीड टू राइट डाउन द सिलेबस. ओके, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है. और उसको उसको टिक मार्क कर लो कि ओके ये चीजें पढ़नी है. बस दैट्स ऑल. सो इट्स नॉट टू डिफिकल्ट अगर आप थोड़ा स्ट्रक्चर्ड वे में चलो. Sir, can I read the job Sir, profile that we got for Rathi, Anand Rathi Group? मतलब इज इट वेरी लेंथी और इज इट No, लाइक. no, sir. It is just a two-liner. हाँ हाँ बोलिए ना. It is stating that the role is of a management trainee, and it is further written that financial planning, portfolio strategy, and reporting, identifying opportunities with the client existing portfolio based on team recommendations, and also supporting the RM in business development. देखो ये जो इन्होंने बताया ना, इट लुक्स लाइक इट्स मोर ऑफ अ सेल्स प्रोफाइल. जहां पर भी आपको बिजनेस डेवलपमेंट वाला वर्ड आ रहा है, राइट. सो उसको समझो कि इट इज इंक्लाइन टुवर्ड्स सेल्स. मतलब आपको क्या करना है कि क्लाइंट के साथ एसोसिएट होना है और अपने जो प्रोडक्ट्स है, अपना जो पोर्टफोलियो है, उनको उनको पिच करना है. अब इनके प्रोडक्ट्स क्या है बेसिकली, आनंद राठी की अगर बात करें तो ये सभी तरह के फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं इनके पास. मतलब ये डीमैट अकाउंट भी खोलते हैं, फिर ये एडवाइजरी भी देते हैं, फिर ये इनके म्यूचुअल फंड्स भी हैं. तो आपको क्लाइंट्स जो भी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स या जो भी रहेंगे उनको ये प्रोडक्ट्स एक तरीके से पिच करना है. अब आप बोलोगे ये सेल्स प्रोफाइल है, तो हाँ ये सेल्स प्रोफाइल है. लेकिन सेल्स भी दो तरह की होती है. एक होती है डोर टू डोर सेल्स. वो नहीं है ये खुद आपको लीड देंगे, आपको बस उनको मैनेज कर. तो एक तरीके से देखा जाए तो कंपेरेटिवली बेटर प्रोफाइल है, लेकिन अलग तरह का रोल है. बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट यू माइट नॉट लाइक इट, राइट. क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट का ये होता है कि हमको तो बस फाइनेंस, टैक्स, अकाउंट्स ऐसा कुछ मिलना चाहिए. उससे अलग अगर हम जाते हैं तो फिर कई बार सीएस को मजा नहीं आता है. तो फिर ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है. एंड ऑब्वियसली सीटीसी. तो डोंट वरी अबाउट दैट. जो भी मेरा 1-to-1 डिस्कशन बाकी है ही आप लोगों की क्लास से, कल का मैंने सबको टाइम दिया हुआ है, राइट. सो जो फेस टू फेस स्टूडेंट है, ऑनलाइन स्टूडेंट है, सबके साथ 1-to-1 डिस्कशन होगा कि कौन सी कंपनी सिलेक्ट करनी है, कौन सी छोड़नी है. तो मैं आपको बोल दूंगा अगर मुझे लगा कि आपका इंटरेस्ट नहीं है इसमें, सेल्स के अंदर, तो बोल दूंगा मैं आपको कि फिर इसको ड्रॉप कर दूँ. सर एक पुणे में कंपनी है ये न्यू, वो न्यू है क्या या पहले भी आ चुके हैं मेडलिन इंडिया इंडिया करके? सॉरी. उसका रोल भी कुछ स्पेसिफाइड नहीं है. मेडलाइन हाँ मेडलाइन फार्मेसी. पहले भी आ चुकी है क्या? हाँ. फार्मेसी का फार्मास्यूटिकल कंपनी है ना. नहीं पहले नहीं तो आई ये है. पहले भी कैंपस में? नहीं नहीं नहीं, फर्स्ट टाइम है. अब देखो इसको कैसे, इसको भी अगर आपको समझना है तो बहुत सिंपल बात है. मेडलाइन उन्होंने बोला कि कुछ भी नहीं दिया हुआ. सिंपल क्या दिया हुआ उन्होंने, मे बी मैनेजमेंट ट्रेन. अब आपको ही पता है फार्मा कंपनी है, ठीक है. तो कौन सा इंडेक्स इंपॉर्टेंट हो गया, 115, 116, 16. 16 में भी अब ये फार्मा कंपनी है तो इन्होंने R&D काफी करी होगी. तो कौन सा इंपॉर्टेंट हो गया यहाँ पे, इंटेंजिबल्स. ठीक है ना. यहाँ पे आपको इंटेंजिबल्स पढ़ के जाना है अच्छे खासे. ठीक है. बट बिकॉज इट इज अ मैनेजमेंट ट्रेनी रोल, मैंने आपको बताया कि सब कुछ पढ़ना है इसमें. जब भी मैनेजमेंट ट्रेनी आया है मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी पढ़ना है, डीटी डाइडिटी के भी बेसिक्स पढ़ के जाना है. ठीक है. बिकॉज द रोल इज नॉट वेरी क्लियर. तो दे में गिव यू
सर accounting, इसमें they may give you FP&A also. हाँ बोलिए। डेजिग्नेशन अकाउंटेंट ग्लोबल कंट्रोलरशिप लिखा हुआ है, हाँ तो अगर और जॉब डिस्क्रिप्शन में तो बहुत बड़ा पैराग्राफ है। देखो नाम से तो वैसे बहुत कुछ क्लियर है। अगर अकाउंटेंट ग्लोबल कंट्रोलर दिया हुआ है, इसका मतलब ये कंट्रोलर का मतलब मैं आपको पहले बोल चुका हूँ, इट इज अबाउट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ठीक है ना, तो अकाउंटेंट ग्लोबल कंट्रोलर मतलब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो इंडेस के 100% क्वेश्चन पूछेंगे वो लोग, और टैक्स, डीटी और आईडीटी के बेसिक्स पूछेंगे। ठीक है ना, तो ओके सर। आई टेल यू लाइक व्हाट यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट। ठीक है। हाँ, मैंने जॉब डिस्क्रिप्शन भी आपको भेजा हुआ है उसका। ओके ओके, राइट। सो इंडियन बैंक्स की हम लोग बात कर रहे हैं तो मेडलाइन इंडस्ट्री के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अभी इंडियन बैंक्स की जब हम बात कर रहे हैं तो इंडियन बैंक्स की बात होगी, फॉरेन बैंक्स की बात होगी। इसके अलावा एक दो प्रोफाइल्स कुछ अलग हटके हैं प्रोफाइल्स। ठीक है, तो उन प्रोफाइल्स के लिए मैं आपको केवल इतना बोलूंगा कि जैसे इन्होंने आनंद राठी की प्रोफाइल बताई। ठीक है, तो अब ये जो हटके प्रोफाइल है, थोड़ा उनको आपको समझना पड़ेगा कि वो किस डायरेक्शन में जा रही है। जैसे कि एक्सेंचर, एक्सेंचर भी काफी लोगों को शॉर्टलिस्ट कराए, तो अब एक्सेंचर का रोल भी समझो, उसमें भी वो सब कुछ लिख देते हैं। एवरीथिंग मस्ट माइट बी देयर, आई एम नॉट वेरी श्योर, अभी मैंने पूरा देखा नहीं उसे, लेकिन अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड इनका यही रहा है कि सीएफएम भी लिख देते हैं, एफपीएनडे भी लिख देते हैं, अकाउंटिंग भी लिख देते हैं, सैप भी लिख देते हैं। तो सब कुछ आ जाता है इसके अंदर, कुछ बचता नहीं। सर ओके, वन सेकंड वन सेकंड। सो इसमें अब सीएफएम अलग है, एफपीएनडे अलग है, सारे इन दोनों की तैयारी अलग करनी है आपको। अकाउंटिंग आ गया मतलब आप फिर इंडेस पढ़ना है, एफपीएनडे आ गया मतलब या इंडेस नहीं पढ़ने हैं या एसएफएम ही पढ़ना है। सो इसमें कंफ्यूजन वाला कोई खेल नहीं है, मतलब एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर कि क्या पढ़ना है। ये मेरा मेन डिस्कशन पॉइंट है आप लोगों से सबसे, कि कहीं भी ये कंफ्यूजन मत रखो कि हमको समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या पढ़ना है। ऐसा कुछ भी नहीं है, थिंग्स आर वेरी वेरी सिंपल एंड क्लियर। अगर आपको क्लियर नहीं तो आप मेरे को बोलो, मैं आपको पूरा क्लियर करके बता दूंगा। और हम लोग करेंगे क्या, कल परसों में हमारा क्या रहेगा टारगेट। हमारा टारगेट ये रहेगा कि जैसे कि आपने बोला वेदांता, तो वेदांता की हम लोग एक शीट प्रिपेयर करेंगे। उसमें जितने भी प्रोबेबल पॉसिबिलिटीज हैं कि वेदांता में इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, उनको पहले से ही लिख लेंगे। बस अब आपको उन सब फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। ठीक है ना, मतलब जो क्लास के डिस्कशन होंगे उसको बस लिखते जाओ वहां पर कि लाइक ये, तो पहले ही अपनी शीट प्रिपेयर कर लो। वेदांत मेरे को कि 3 कंपनी से शॉर्ट लिस्टिंग है फॉर एग्जांपल, वेदांता, एक्सेस और एमएस के। ठीक है, अब तीनों की आपने एक शीट बना ली, और उस शीट में लिख लो कि ये चीजें मुझे प्रिपेयर करनी है। तो ये शीट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, व्हाट यू हैव टू प्रिपेयर। बस जब मैं क्लास में आपको बताऊं कि तब आप ध्यान दो कि लाइक ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड, बस दैट्स ऑल। सो इट्स अ वेरी वेरी सिंपल थिंग। बस ये है कि अब आप लोग थोड़ा स्ट्रेटेजिकली मेहनत करना, मतलब एकदम ऐसा नहीं कि अ, कर ही लोगे आप मेहनत। वैसे आप बीइंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, मेहनत में तो आप लोग कभी पीछे रहते ही नहीं, तो वो कुछ कहने की बात ही नहीं है। ठीक है, यू विल डू व्हाट। सो बस हमको थोड़ा सा स्मार्टली प्ले करना है। ओके, हाँ आप कुछ बोल रहे थे, बोलिए। सर मैं ये बोल रही थी आपको कि हम्म। एक्सेंचर इंडिया में ना एक जॉब डिस्क्रिप्शन ये है कि बिजनेस एंड इंटीग्रेशन आर्किटेक्चर एनालिस्ट। हाँ, तो मतलब क्या ये स्पेसिफिक रोल नहीं है, इसमें भी ऐसे बहुत सारे रोल्स इंक्लूड रहेंगे? ये स्पेसिफिक है, बिल्कुल स्पेसिफिक है। ये समझ लो कि ये है हाफ ह्यूमन और हाफ रोबोट। वो जो आता है ना उसमें, मूवीज में, तो ये होगी टेक्निकल प्रोफाइल और ये हो गई फाइनेंस प्रोफाइल। ठीक है, अब ये लोग करते क्या है, ये वही है सैप इम्प्लीमेंटेशन वाली। तो सैप इम्प्लीमेंटेशन में टेक्निकल में अब आपसे कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछेंगे कि लाइक आपने सैप आपको आता है क्या, कोई बात नहीं, नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको फाइनेंस में अकाउंट्स की पकड़ कैसी है, आपकी अकाउंट्स आपको आता है नहीं आता है, ये जरूर पूछे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो दैट इज व्हाट वी हैव टू प्रिपेयर। हमको यहाँ पर अकाउंट्स प्रिपेयर करके जाना रहेगा। तो
अगेन लाइक इसमें क्लैरिटी, ठीक है। तो यू जस्ट सिंपली राइट द नेम ऑफ, you may write simple headlines also when we are discussing one to one, or you can simply send the complete photograph of so मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको शॉर्टलिस्टिंग समरी के लिए जो मैंने भेजा है, ठीक है। जिन लोगों ने अभी जस्ट क्लासेस ज्वाइन करी है, ठीक है, उन लोगों को भी मैं भेज दूंगा अलग से ये, ठीक है। that for tomorrow's discussion you have to fill in this particular format, ठीक है। ये फॉर्मेट आपको फिल करना है, ठीक है, कि लाइक कौन सी कंपनी है, क्या जॉब डिस्क्रिप्शन है, और जो डेट्स हैं, डेट्स आपको ब्रोशर में से डाल दी, ठीक है। उसमें तो गलत आ रही थी डेट्स, सब में 4th Feb आ रहा था। सीटीसी नंबर ऑफ वैकेंसी है नहीं, इसको हटा देना, सीटीसी जो लिखा है उसमें टोटल वो लिख देना, पोस्टिंग भी दी हुई है, राइट, और ऑफ कैंपस। तो ये पूरा डेटा आपको फिल करना है आज रात को, और कल फिर हम लोग इसमें एक ऑब्जेक्टिव डिस्कशन करेंगे, राइट। अब सैप की प्रोफाइल लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, ये भी उसी में डिस्कशन हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये सब जो की डिस्कशन है, दैट आई विल बी डूइंग वन वन ऑन वन। कुछ जो जेनरिक डिस्कशंस रहेंगे डेफिनेटली मैं पहले बता दूंगा, बट मोस्टली दिस विल बी, ठीक है। सो ये क्लियर है अभी तक? किसी को कुछ डाउट हो तो बताइए। इज कंसल्टेंट क्रेडिट एनालिस्ट सिमिलर टू क्रेडिट मैनेजर? यस, क्रेडिट एनालिस्ट इज क्रेडिट मैनेजर ओनली, ठीक है। ऑल राइट। तो अब आप लोग नाम के साथ में उसका डिस्क्रिप्शन भी मुझे साथ में भेजना, और आप लोग भी इस पे फोकस करना, क्योंकि देखो बिना जॉब डिस्क्रिप्शन के तैयारी करना मतलब बिल्कुल ऐसा है कि अंधेरे में तीर चलाने वाली बात है। वेदांता के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्या तैयारी कर रहे हैं कुछ पता नहीं। और अभी एक नया भी सिस्टम चालू हो गया है, और वो सिस्टम ये हो गया है कि मतलब वैसे तो देखो इट्स ऑलवेज गुड टू बी कनेक्टेड, लेकिन कई बार कनेक्टिविटी भी दिक्कत दे जाती है। अभी मेरे को मॉर्निंग में एक स्टूडेंट ने बोला कि सर एक ग्रुप में हम लोग डिस्कशन, ग्रुप में ढेर सारे डिस्कशंस चलते हैं, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, तो एक में उस किसी ने बोला कि इंडियन ऑडिट बेटर है या ग्लोबल ऑडिट बेटर है। तो आपस में डिस्कशन ऐसे चल रहे हैं, किसी ने लिख दिया कि ग्लोबल ऑडिट बेटर है, तो ठीक है। कहने की बात ये है कि लाइफ के इतने क्रिटिकल डिसीजंस जो हो रहे हैं, वो डिसीजंस एकदम किसी के रैंडम एडवाइस पे हो रहे हैं। हमको पता भी नहीं है कि कौन बोल रहा है, किसने मतलब बोल दिया ये, लेकिन हमने माइंड मेकअप कर लिया। तो ये भी एक परेशानी है। आप लोग भी थोड़ा सा इन चीजों से बच के रहना। मैं यही बोलूंगा आपको कि जब भी आप किसी की एडवाइस ले रहे हो तो उसको कहीं ना कहीं क्रॉस वेरीफाई करो कि हम हमारी लाइफ का सबसे क्रिटिकल डिसीजन ले रहे हैं, दैट इज टेकिंग द फर्स्ट जॉब। फर्स्ट जॉब इज द फाउंडेशन। मैंने आइडिया ज्वाइन किया इन एफपी एंड प्रोफाइल, अगले 6 इयर्स तक मैं टेलीकॉम में ही था। पहले जॉब का इतना बड़ा इम्पैक्ट होता है कि आपका लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट है। मैं एफपी इंडिया भी नहीं छोड़ पाया और ना मैं टेलीकॉम इंडस्ट्री छोड़ पाया, मेरे सारे स्विच टेलीकॉम में ही। तो पहला जॉब अब जब हम लोग ले रहे हैं तो सोच समझ के लेना ही राइट तरीका है। इसे रैंडम कॉल लेना डेफिनेटली सही नहीं, ठीक है ना। तो आप लोग भी जब ये सब डिस्कशन करो तो इन चीजों को हमेशा क्रॉस चेक करना। कोई भी बहुत बड़ा डिसीजन ले रहे हो तो मैं तो ये भी बोलूंगा कि आप मेरे से बात कर रहे हो, उसके अलावा भी अगर आप चाहो तो किसी और से भी करो। ऑल्दो आई कैन गिव यू वेरी वेरी डिटेल्ड ओपिनियन अबाउट एवरीथिंग, बिकॉज मैंने कम से कम 2000 बच्चों के करियर ग्राफ देखा है, और मैं डायरेक्टली स्टूडेंट्स के साथ डील करता हूँ। मतलब हम लोग केवल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के लिए वी हैव फैकल्टीज, अदरवाइज आई डू डायरेक्टली इंटरेक्ट विद स्टूडेंट्स। तो मेरे को बहुत क्लोज चीजें पता है कि लाइक स्टूडेंट कैसे सोचते हैं, क्या करते हैं, और फिर आगे उनके करियर ग्राफ कैसा हो, दैट वे, ठीक है। तो दैट्स व्हाई आई एम जस्ट सेइंग कि ऐसे एकदम रैंडम कॉल नहीं लेना, ठीक है। अब ये जो 7 डेज है इसको हम लोग कैसे डिवाइड करा है, तो आई सिंपली सेंड यू some of the scripts, right? So for example, today I will send you the script for introduction and articleship, ठीक है। कोई सा भी इंटरव्यू होगा, सबसे पहला सवाल ही आपसे ये होगा कि प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड व्हाट इज योर आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस, एक्सप्लेन योर आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस, ठीक है ना। तो इसका हमारे पास रेडी आंसर होना चाहिए। अटक अटक के आंसर दोगे मजा नहीं आएगा,
राइट। छोटे छोटे से इंट्रोडक्शन स्टूडेंट्स दे देते हैं कई बार। माय नेम इज सो एंड सो, आई एम फ्रॉम दिस प्लेस, आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई डिड माय आर्टिकलशिप फ्रॉम अ मीडियोकर फर्म which is based in here, got exposure in audit and taxation। ये कैसा इंट्रोडक्शन है? मतलब ऑन अ स्केल ऑफ 10 आई वुड रेट इट एज 2 और 3। बहुत ही बेसिक सा इंट्रोडक्शन, हर कोई वो दे रहा है। आपको इंट्रोडक्शन देना है तो बिल्कुल कॉन्फिडेंटली गिव वेरी थॉरो इंट्रोडक्शन, राइट। सो पहले तो मैं आपको इसकी एक स्क्रिप्ट शेयर करूंगा, आपको उसके हिसाब से इंट्रो प्रिपेयर करना है। और उसके बाद क्लास में एक बार मुझे बताना है कि लाइक हाउ यू प्रिपेयर। दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन, ठीक है। सेम गोज फॉर आर्टिकलशिप एंड आर्टिकलशिप के अंदर भी यही होता है। लोग की आर्टिकलशिप अच्छी नहीं होती है तो उनकी आवाज से ही पता चल जाता है। आई डिड इट फ्रॉम अ मीडियोकर फॉर्म। क्यों बोलना मीडियोकर फॉर्म? आपको लग रहा है कि मीडियोकर बोलने के बाद इंटरव्यूअर आप पे थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएंगे? कोई सॉफ्ट नहीं होगा, उनको तो जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करनी है। तो कुछ भी हम बोल देंगे कि हमारा एक्सपीरियंस पूरा छोटी फर्म का है, ऐसा है वैसा है, तो हमसे ज्यादा क्वेश्चन मत पूछो। ये सोच के स्टूडेंट बोलते हैं मीडियोकर फॉर्म या एवरेज आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस। मत बोलिए, ये खराब इंप्रेशन पड़ता है, ठीक है ना। तो बी रेडी फॉर क्वेश्चंस, लेकिन आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस को लेकर डरो मत और ना इस तरह के स्टेटमेंट, ठीक है। तो इंट्रो और आर्टिकलशिप दोनों की मैं आपको कुछ स्क्रिप्ट्स भेजूंगा, आपको उनको प्रिपेयर करना उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट वी डू, एंड देन इमीडिएटली विल स्टार्ट विद इन डेज, ठीक है। सो दिस इज द डे 1। डे 2 जो रहेगा हमारा, अगेन इट इज कंटिन्यूशन ऑफ इन डेज। जो मैंने आपको जो क्वेश्चंस बोले उसी के बेसिस पर देयर विल बी कंटिन्यूटी ऑफ इन डेज, ठीक है। डे 3 वी विल बी टेकिंग ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट, ठीक है। अगेन हाउ यू विल डू वेरियस लाइन आइटम्स ऑडिट, ठीक है ना। इन डेज, सॉरी, रेवेन्यू ऑडिट एंड वेरियस लाइन आइटम्स कैसे उसको ऑडिट करना है, ठीक है। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। डे 4, a very important session, that is HR round, very important session। Every year I see 50% of students are getting eliminated because of wrong HR answers। What are your long term plans? I would like to do job for 2 years and then I will start my practice। Immediate rejection। Do you have plans for higher studies? Yes, I would like to do MBA in future and also I'm planning to do CFA। क्यों लेंगे वो आपको? आप जब बोल ही रहे हो कि हम आपके यहाँ पे रुकने वाले नहीं हैं, हमारा हायर स्टडीज का प्लान है, वो क्यों आपको हायर करेंगे? तो ऐसे आंसर्स नहीं देना है हम, ठीक है। तो बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे कि लाइक जहां पर हमको एक मेंटल प्रिपरेशन पहले से ही रखनी है कि लाइक ये क्वेश्चन आएगा तो इस टाइप का आंसर देना है, नहीं तो फिर वो ट्रैप में फंसा देते हैं। वाई आर यू ज्वाइनिंग PSU? एक्सिम बैंक क्यों ज्वाइन करना है आपको, या PSU क्यों ज्वाइन करना है? तो पहले से मेंटली प्रिपेयर होके जाओ कि हाँ ये आंसर बोलना है, नहीं तो हम लोग फिर वहां पर कभी बोल देंगे वर्क लाइफ बैलेंस। अब मुंह से तो निकल गया वर्क लाइफ बैलेंस, अब क्या होगा फिर? बस उसके बाद उन्होंने एक वो, अब आप उसको वापस जस्टिफाई नहीं कर सकते हो, या फिर अब आप ये नहीं बोल सकते हो कि सॉरी, आई आई डेंट मीन दैट। तो एक बार निकल गया सो निकल गया, गेम ओवर। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी सिलेक्टिव इन HR राउंड। तो HR राउंड मुझे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है एज फार एज प्रिपरेशन इज कंसर्न, क्योंकि बाकी तो टेक्निकली प्रिपरेशन तो आप लोगों ने फिर भी करी हुई है, लेकिन HR के क्वेश्चन आप लोगों ने कभी फेस नहीं करे। और इंटेंट क्या होता है इंटरव्यूअर का, वो इंटेंट हमको समझना बहुत जरूरी है। तो HR राउंड इज समथिंग विच इज विल बी कवरिंग ऑन डे 4, ठीक है ना। डे 5 वी विल बी टेकिंग फाइनेंस, ठीक है। फाइनेंस में जो मैंने आपको पॉइंट्स बोले, राइट, ऑल रेशियो एनालिसिस, कैपिटल बजटिंग, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एंड this one that is कैपिटल बजटिंग, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर हो गया फाइनेंस के अंदर। ओके, डे 6, और दिस इज फॉर बैंक्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बैंकिंग, ठीक है। डे 6 क्या होगा? ओके, डे 6 इज बेसिकली टैक्स, राइट, DT एंड IDT इसके अंदर आ जाएगा। और डे 7 पे फिर आपका मॉक इंटरव्यू,
ठीक है। तो दिस नॉट ओनली इंक्लूड्स कैंपस की शॉर्ट लिस्टिंग। अगर आपको लग रहा है कि हमारी कोई शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंपस भी हो रही है, तो आप ऑफ कैंपस भी बता दो, तो हम लोग उसके हिसाब से भी प्रिपरेशन कर लेंगे। ठीक है। तो ये तो प्रिपरेशन वाला पार्ट हो गया। अब व्हाट यू विल हैव, राइट। सो आपके पास एक ग्रुप की लिंक आ जाएगी। ठीक है। उस ग्रुप के लिंक पर आपको बहुत सारे फॉर्मेट्स मिलेंगे। मैं आपको बताता जाऊंगा कि उन फॉर्मेट्स को कैसे आपको यूज करना। ठीक है। तो जैसे कि लगे एक दो फॉर्मेट में आपको शेयर करता हूँ। सो दिस इज बेसिकली द इंट्रोडक्शन फॉर्मेट। ठीक है। तो आपको इसी के हिसाब से अपना इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करना। ठीक है। और मैं आपको अगेन एक सजेशन दूंगा कि एक कॉपी बना लीजिएगा, सेपरेट कॉपी। ठीक है। जिसमें चीजें सब शॉर्ट शॉर्ट में लिखते जाओ। ठीक है। आई नो कि हमारी आदत शायद ना हो कॉपी मेंटेन करने की, लेकिन बिलीव मी, लाइक आई हैव सीन द रिजल्ट्स ऑफ दैट। सो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं अगर आप एक कॉपी अगर अलग से मेंटेन कर लो इसकी। ठीक है ना। बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। लास्ट मोमेंट की जो प्रिपरेशंस होती हैं वो बहुत इजी हो जाएगा। एंड अभी टाइम है, मतलब एकदम ऐसा भी नहीं कि लाइक वी आर जस्ट रनिंग आउट ऑफ टाइम। 28 तक हम लोग इसको फिनिश कर देंगे, फिर भी आपके पास रिवीजन के लिए टाइम बचेगा। ये स्टैट्यूटरी ऑडिट का एग्जांपल है। आप अगर आर्टिकलशिप एक्सप्लेन कर रहे हो, तो आपको कैसे एक्सप्लेन करना है स्टैट्यूटरी ऑडिट, राइट। दिस इज द एग्जांपल ऑफ दैट। ठीक है। तो इसके हिसाब से आपको, तो इस तरह के जो फॉर्मेट्स हैं वो आपको प्रिपेयर करने रहेंगे। इंडेक्स का जैसे मैंने आपको बोला कि इंडेक्स इज समथिंग विच यू हैव टू प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू दी प्रैक्टिकल रिक्वायरमेंट्स। थ्योरेटिकली प्रिपेयर नहीं करना है। तो इंडेक्स का ये जो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है, ये मैं शेयर करूंगा आपके साथ। अब आप बोलोगे कि स्टेप्स तो वही है, जो 5 स्टेप्स होती है वही तो लिखी हुई है, लेकिन हम लोग जो क्लास में डिस्कशन करेंगे उससे आपको क्लियर हो। क्वेश्चंस विद क्वेश्चंस। ठीक है ना। तो 8-10 क्वेश्चंस अगर आपने इसके कर लिए, ग्रिप बन जाएगी आपकी। ओके। सो ये सब मटेरियल आपको ग्रुप पर मिल जाएगा। ठीक है। और इसके अलावा आपको और क्या चीजें अवेलेबल रहेगी, जो सबसे मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और वो है कि अगर आप बिल्कुल एग्रेसिव प्रिपरेशन के मूड में आ गए हो, तो फिर अब आपके सामने रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी अवेलेबल। ये रेगुलर बैच की रिकॉर्डिंग्स। तो रेगुलर बैच की रिकॉर्डिंग आप फास्ट ट्रैक पे देखना स्टार्ट कर दो। क्योंकि देखो, ये तो बात आप समझते ही हो कि हम लोग की रेगुलर बैच चली थी 15 दिन, और अब हम लोग वही प्रिपरेशन कर रहे हैं 7 डेज में। तो नो डाउट ये तो है कि स्पीड में तो फर्क पड़ेगा। ठीक है ना। तो स्पीड में फर्क पड़ेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस में भी फर्क पड़ेगा। इंडेक्स 115 के अगर मैंने क्लास में 15 क्वेश्चन लिए हैं, तो यहाँ पे मैं ज्यादा से ज्यादा 10 क्वेश्चन। लेकिन आप ये कर सकते हो कि आप पैरेलली वो लेक्चर्स भी देखते जाओ। मेरा तो ये सजेशन है कि दोनों चीजों को साथ साथ में लेके चलो। ठीक है। तो बेस्ट हो जाएगा आपके लिए। गाइड भी कर दूंगा मैं आपको कि आप आज हमने ये पढ़ा है उसको साथ में उसको भी पढ़ो। लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपको कि आपको रिकॉर्डेड के भरोसे रहना है। इट इज जस्ट एन एडिशनल थिंग दैट यू विल बी हैविंग। हम लोग क्लास में यहाँ पे पूरा ही कवर करेंगे। ठीक है। और इसके अलावा फिर जिन लोगों के ग्रुप डिस्कशंस हैं, जिन लोगों के रिटर्न टेस्ट है, राइट, दे विल गेट दैट काइंड ऑफ सपोर्ट ऑल्सो। ग्रुप डिस्कशन अगर है आपका, तो जितने भी लोगों के ग्रुप डिस्कशन होंगे, हम लोगों के प्रैक्टिस सेशंस रहेंगे ऑन ग्रुप डिस्कशन। जिनका रिटर्न या साइकोमेट्रिक टेस्ट है, तो यू विल गेट द रिटर्न एंड साइकोमेट्रिक टेस्ट रिलेटेड स्टफ। क्लियर है सभी को? कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। यस। और उसके बाद फिर आप लोगों के मॉक इंटरव्यूज, राइट, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। मॉक अगर आपने दे दिया, और जो मैं मॉक कंडक्ट कर रहा हूँ उसमें इफ यू आर स्कोरिंग मोर देन 6, काफी आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इफ यू आर स्कोरिंग मोर देन 6, राइट, सो यू विल बी वेरी वेरी कॉन्फिडेंट, क्लियर कि ओके ठीक है, अब हम लोग हैंडल कर सकते हैं इंटरव्यूज। ठीक है। राइट। सो एनी क्वेश्चन इफ यू हैव, प्लीज टेल मी। अच्छा, जो लोग ऑलरेडी रजिस्टर हो चुके हैं वो तो फाइन है। जो लोग रजिस्टर अभी नहीं हुए हैं और जो लोग रजिस्टर होने वाले हैं,
वो लोग इस नंबर पे मैसेज कर दो, ठीक है। सो यू विल गेट ऑल दी डिटेल्स, ठीक है। दिस इज अ, सॉरी ये गलत नंबर हो गया। दिस नंबर यू विल गेट ऑल दी डिटेल्स, ठीक है। And of course, whatever one-to-one discussion you would like to discuss, that is also there, right? You will have direct access to me. You can directly give me a call wherever you are getting started. All right. So class का curriculum सबको clear है? किसी को कुछ भी doubt हो तो बता दीजिए एक बार। Class का curriculum plus what you have to study. Is it clear to everyone? सर मेरा एक क्वेरी है। हाँ हाँ बताइए। सर जैसे आपने बैंक्स के लिए बताया कि हमारा जो रोल होगा वो या तो वो क्रेडिट मैनेजर के लिए हो सकता है या रिलेशनशिप मैनेजर के लिए, बट ठीक जैसे है। एक्सिस बैंक के लिए काफी मतलब एक स्पेसिफिक रोल नहीं आया है, बहुत सारे रोल्स उन्होंने भेज दिए हैं। जैसे उसमें ट्रेजरी ऑपरेशंस भी है, फाइनेंस एंड अकाउंट्स भी है, क्रेडिट ऑफिसर भी है, हम्म पोर्टफोलियो है। तो हमें अपना प्रेपरेशन को वैसे ही रखना है ना, मतलब जैसे अब जैसे इसमें फाइनेंस एंड अकाउंट्स भी है, तो अगर हम हम्म थोड़ा एयर पढ़ के जाएंगे और हम्म। साथ में जैसे आपने बताया कि एफएम भी हमें बैंक्स के लिए एफएम पढ़ के जाना पड़ेगा एंड बैंक टर्मिनोलॉजी, तो प्रेपरेशन इन सब के लिए भी सेम ही होगा ना? हाँ देखो, मतलब इसमें ब्रॉडली ऐसे लेके चलो आपकी एक्सेस के लिए खासतौर पर अगर बात करें तो इसकी प्रिपरेशन हो गई एचओ के लिए अलग और ब्रांच के लिए अलग, ठीक है ना। लेकिन अब अगर हमको ये क्लैरिटी, कई बार कैसा होता है कि बैंक्स आपको या कंपनी आपको पहले कॉल कर लेती है या आपको आपसे अभी मतलब जैसे जब आपके इंटरव्यू शेड्यूल होंगे उसके पहले वो रेज्यूमे मांगेगी वापस, ठीक है। तो उस कई कंपनीज पहले से ही कांटेक्ट कर लेती है हमको, तो उस केस में वो कई बार बता भी देती है कि लाइक ये रोल होने वाला है। लेकिन अगर हमको ये रोल क्लियर नहीं होता है कि ये किस रोल के लिए है, तो फिर हमको हेड ऑफिस के लिए भी प्रिपरेशन करनी है। तो जैसे आपने बताया ट्रेजरी, आपने बताया फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, तो ये तीनों ही रोल के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। और डेफिनेटली ये तीनों ही रोल अपने आप में अलग अलग रोल है, तो प्रिपरेशन तो थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। और ब्रांच के लिए क्रेडिट मैनेजर, इसका प्रिपरेशन पूरा अलग रहेगा। तो कहने की बात ये है कि फिर इसकी प्रिपरेशन बहुत थॉरो हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी प्रिपरेशन, बट करना पड़ेगी, कुछ चॉइस नहीं है। ओके सर। हम्म। सर तो हमें इंटरव्यू के पहले भी पता नहीं चलेगा कि हमें कौन सा प्रोफाइल मिलने वाला है हाँ ऐसा? इंटरव्यू के पहले भी ये मतलब ये समझ लो कि ये ऑल्दो बैंक है, लेकिन ये थोड़ा मिक्स है, इंडस्ट्री प्लस बैंक वाली कैटेगरी में आ गई, इंडस्ट्री एंड बैंक। क्योंकि ये इंडस्ट्री इसलिए होगी क्योंकि ये आपको हेड ऑफिस में हायर करेंगे। तो हेड ऑफिस के फंक्शंस जितने भी होते हैं जो मैंने बताया आपको, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग, ट्रेजरी, टैक्सेशन। अब बैंक में थोड़ा और अलग हो जाता है। बैंक में रिस्क मैनेजमेंट की अलग प्रोफाइल हो जाती है, ट्रेजरी एक अलग हो जाती है, एक अलग ही वर्टिकल होता है। एक्सेस का मुझे पता है, वहां पे आईएफसी का एक अलग डिपार्टमेंट। तो अब हमको उस एंगल से भी प्रिपेयर करना है, केवल क्रेडिट के एंगल से नहीं प्रिपेयर कर सकते हैं कि इतना प्रिपेयर कर लिया काम हो गया, नहीं, हमको ये भी प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। दैट, और 90% मान के चलो एक्सेस नहीं बताएगी कि वो किस रोल के लिए ले रही। सर हमें जो रोल अलॉट की जाएगी वो हाँ हमारे इंटरव्यू के जो हमारा प्रेपरेशन होगा, लाइक जो आउटकम निकलेगा वो उसके बेसिस पे होगा, या फिर वो मतलब ऑलरेडी उन लोग को पता होता है कि हम किस रोल के लिए इंटरव्यू ले रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, वो अगेन देखो, जैसे अगर एक्सेस की बात कर रहे हो आप, जी जी, एक्सिस बैंक। एक्सेस में क्या होगा कि दे आर हायरिंग यू काइंड ऑफ अ मैनेजमेंट ट्रेनिंग। मैनेजमेंट ट्रेनिंग जब भी वर्ड सुनने में आया आपको तो एक बात आप खुद भी फिक्स कर लो कि मैनेजमेंट ट्रेनिंग इज बेसिकली एन अननोन टेरिटरी। अननोन टेरिटरी मतलब ना तो रोल क्लियर है और ना लोकेशन क्लियर, इट्स एन अननोन टेरिटरी। So they will hire you as a management trainee. Then they will tell you, okay, like I'll be sending you to Jaipur for credit manager, or we are keeping you in Mumbai head office for internal financial control. That ठीक है। तो at this moment it is sort of that.
तो मतलब सर ऐसा नहीं है कि हमें बहुत ज्यादा इन डेप्थ नॉलेज होना पड़ेगा ये सारी ही कैटेगरीज के अंदर? देखो जो बेसिक एक्सपेक्टेशन रहती है उनकी, हमको बस वो फुलफिल करना है, तो वो दैट आई गाइड यू इन द क्लास। ओके सर, ओके। ऑल राइट, ओके ग्रेट। सो ये पॉइंट्स है, ठीक है ना? और कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। सर, फॉर L&T द डेजिग्नेशन इज ऑफ एग्जीक्यूटिव, और उसमें भी डायरेक्ट टैक्स कंप्लायंस, इनडायरेक्ट टैक्स कंप्लायंसेस, इंटरनल ऑडिट, एवरीथिंग इज रिटन, सो इट इज ऑल्सो अ वास्ट रोल, राइट? राइट, वही एलएनटी, मतलब मैंने वही बताया अगेन, वो भी मैनेजमेंट ट्रेनी में आ गया। और मैनेजमेंट ट्रेनी का जो मैंने पूरा आपको बताया ना कि लाइक FR, FM, IDT, DT के बेसिक्स वो देख के जाने पड़ेंगे। And sir, Accenture and L&T are coming on the same date in Mumbai. So हमें एक ही चूज करना चाहिए ना अगर सेम डे में इंटरव्यूज है तो? देखो, मैंने आप लोगों को बोला है कि ये वाले डिस्कशन में 1-to-1 ही कर पाऊंगा। ये डिस्कशन इतने जेनरिक डिस्कशन में मैं आंसर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उसमें आपका नुकसान ज्यादा होगा। मैं तो बोल दूंगा कि अलग अलग दिन ले लो, लेकिन ओके सर। वो गलत आंसर है एक्चुअली। वो मेरे को पूरा प्रोफाइल देखना पड़ेगा आपका, दूसरी कंपनीज भी देखनी पड़ेंगी, आपके पास कौन कौन सी है, ऑफ कैंपस क्या है वो देखना पड़ेगा, आपके अटेम्प्ट्स देखने पड़ेंगे, राइट, उस कंपनी के रोल्स देखने पड़ेंगे। तो ऐसे जेनरिक आंसर नहीं देने के कारण ही वी हैव टू कंडक्ट 1-to-1, है ना? ओके ग्रेट। सो अब हम लोग थोड़ा सा ये प्रिपरेशन वाला जो पार्ट है, ठीक है ना, अब हम उस पर आ जाते हैं।